Hi guys, I'm Sopna. Welcome back to my channel. This is the fifth video of my series, and without any further ado, let's get into the video. So guys, this video is all about some reminders that you should give yourself in a regular basis. So without any further delay, let's start our video. The first reminder that we should give to ourselves is the past cannot be changed. In my previous video, I think the starting video, I have said this like a quite many times. I think that past cannot be changed. अगर आप past में फंसे हुए हो then जल्दी निकलो. Because I have also told you the reason, and I will again tell you the same. If you are stuck in your past, please come out, because past cannot be changed. But what you can do is you can live in your present and plan your future. You can't do anything about the past. So ये reality है. Accept the reality. Come out of your imagination and live in the present and plan for a better future. So guys, our second reminder is कि opinions do not define your reality. This is a thing I think many of you are bothered about. If someone is giving you some suggestions or telling their opinions to you, whatever, क्योंकि आजकल के लोग ना opinions बताते नहीं है, वो direct थोपते हैं. Never do that. You can share your point of view, you can share your opinion, but yes, their opinion do not define your reality. तो किसी का सजेशन और ओपिनियन को इतना दिल में लेके ओवरथिंक करके खुद का बुरा करने का कोई ज़रूरत है नहीं. जस्ट स्टिक टू योर ओपिनियंस, योर पॉइंट ऑफ व्यू, नो योर सेल्फ. यू नो, सामने वाला का थिंकिंग एंड ऑल कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर और प्रेजेंट, क्योंकि वो कोई भी नहीं होते हैं आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी साइड करने के लिए. So that's why their opinion, take the opinion and tell them thank you, but don't overthink and depress yourself. ये करने का ज़रूरत नहीं है. Just take the opinion, tell thank you and stick to your opinion and know your worth. Guys, now let's come to the third reminder, which is कि everyone's journey is different. ये बात ना I don't know, अच्छा अभी इंस्टा के स्टाइल में बोलेंगे, I don't know who need to hear this. But yes, आपका और मेरा जर्नी सेम नहीं है. I'm just telling. But yeah, I actually don't know who needs to hear this. But everyone's journey is different. It is completely different. What you are going through, what you have gone through, what you are planning, what you are doing, nobody knows that. आप जानते हो आप कैसे हो, क्या हो, क्यों हो. Everything you know yourself better than others. So खुद को भी कभी भी at any cost, never compare yourself with anyone at any cost. You are the best as the way you are. You don't need to compare yourself, because everyone is different and their journey is different as well. So don't ever, please, that's a big request, do not compare yourself with anyone. क्योंकि सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबका लाइफ डिफरेंट होता है, उनके आसपास के लोग भी डिफरेंट होते हैं. एवरीथिंग इज़ डिफरेंट. हाँ, कुछ सिमिलरिटी हो सकता है, बट कुछ, हाँ, इट मे रिलेट, बट रिलेट कर थोड़ा भी रिलेट कर गया मतलब ये नहीं कि आपका और मेरा जर्नी पूरा सेम है. सो प्लीज़ कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर ना करो. यू आर द बेस्ट द वे यू आर. अप्रिशिएट योर सेल्फ. अगेन, नो योर वर्थ. किसी के सामने इतना भी मत गिरना. जस्ट एवरीवन्स जर्नी इज़ डिफरेंट. Stick to your journey, appreciate your life, be grateful for the things you have, and yeah, please don't ever compare yourself with anyone or anyone's journey also. We all are different. We all are completely different from each other. So guys, our fourth point is कि things will get better with the time. ये सुनने के बाद प्लीज़ मुझे गाली मत दो, बट या दिस इज़ ट्रू. थिंग्स डू गेट बेटर. टाइम एक्चुअली हील्स, बिकॉज जो हो गया वो तो उसे तो हम कर नहीं सकते, बट जो होगा वो हमारे हाथ में है.
एंड जैसे जैसे टाइम जाता है आपका थिंकिंग, आपका बिहेवियर, आपका बहुत सारी चीज़ें चेंज होते हैं, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. एंड येस, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस. एंड जो भी होता है, जैसे भी होता है, जितना भी बुरा हो, टाइम विल गो, थिंग्स विल गेट बेटर, टाइम इज़ गोइंग टू हील एवरीथिंग. सो डोंट पैनिक, इतना ज़्यादा ओवरथिंक पैनिक करके डिप्रेस्ड मत रहो. बिकॉज आई नो कि बहुत जन सामने में बहुत खुश होते हैं, फिर अंदर बहुत दुखी होते हैं. बट प्लीज़ बी जेन्युइनली हैप्पी. खुद के ऊपर खुद रहम करो. डोंट वेट फॉर एनीवन एल्स टू मेक you comfortable, make you feel special. खुद को स्पेशल फील कराओ. appreciate the time you have, appreciate everything you have in your life. And yes, time is, if anything is wrong with you, या फिर something bad is happening, then trust me guys, time is going to heal everything. Things will definitely get better with the time. Just go with the flow and yeah, trust the process. Let's go to our fifth point, which is कि happiness is found within. The reason I wrote this point is कि people are searching for happiness. पहाड़ी पे जाओगे, मतलब पहाड़ी, we want to go to the hill stations, we want to go to the beach and all to find happiness. But yeah, that's a way, that's what we love, we want to explore. But yeah, happiness can be found within. We can find happiness in small things. So you know, sad मत रहो इतना, क्योंकि आपकी खुशी आपके हाथ में है. If you can be depressed this much, you can also be happy this much. But you are being depressed this much and depressed ज़्यादा, happiness कम, और आप ढूंढते हो खुश कैसे होगे. If you are with your parents, your family, your friends, they are the reasons you can be happy. If you are doing justice to yourself, then you can be happy. आप अगर खुद के साथ खुद से प्यार करते हो, एंड यू नो दैट ये जो सेल्फ डाउट, ये सब वगैरह, these are nonsense things, तो यू कैन स्टे हैप्पी एक्चुअली. क्योंकि आप खुश नहीं रहते हो, क्योंकि आपका दिमाग बहुत जगह घूमता है, आप ओवर थिंक करते हो उस चीज़ को लेकर, एंड वो आपकी खुशी को दबा देता है. बट या, वी कैन स्टे हैप्पी, वी कैन फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग. जितना भी छोटा चीज़ हो, वी कैन फाइंड हैप्पीनेस ओनली इफ़ वी क्या बोलते हैं इसको, इफ़ वी कंट्रोल आवर माइंड, देन वी कैन बी हैप्पी. बट अगर हम ओवर थिंक करके डिप्रेशन में जाते रहेंगे, देन हमारा दिमाग तो हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगा. बट डोंट लेट दैट हैपन. जस्ट यू शुड कंट्रोल योर माइंड, यू शुड be happy. Happiness should, you know, happiness is something which you can gain, या फिर which you can have. बट आप लोग हैप्पीनेस से ज़्यादा सैडनेस को चूज़ करते हो, इसलिए आप बहुत सैड रहते हो. अब ये मत बोलना जानबूझ के थोड़ी ना सैड होते हैं, आप जानबूझ के ही सैड होते हो. आपको पता है ये हो गया, वो हो गया, एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, एंड आप सैड रहते हो. बट आप चाहोगे तो खुश रह सकते हो, बट आप चाहते नहीं हो. एज आई सेड, आवर फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हैप्पीनेस इज़ फाउंड विद इन. नाउ लेट्स गो टू द सिक्स्थ पॉइंट, विच इज़ कि ओवर थिंकिंग लीड्स टू सैडनेस. दैट्स व्हाट आई ऑल्सो सेड इन द फिफ्थ पॉइंट, कि आप जितना ज़्यादा सोचोगे उतना सैड आप रहोगे, उतना डिप्रेस्ड आप रहोगे. क्योंकि व्हेन यू आर ओवर थिंकिंग, यू कांट थिंक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स. आप जितना ज़्यादा सोचोगे, उतना नेगेटिव बातें आपके दिमाग में आएगी. बट दैट मीन्स यू कैन नेवर बी हैप्पी, क्योंकि आप तो सोचते रह जाओगे और नेगेटिविटी आपके अंदर आती जाएगी, तो आप खुश कैसे रहोगे. सो डोंट ओवर थिंक. जो भी है सिचुएशन, जैसा भी है, उसके हाल में छोड़ दो. गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ. थिंग्स विल बी राइट विथ टाइम. ये सारे पॉइंट्स यू नो आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो नेवर ओवर थिंक. मतलब आप लोग तो करते होगे बहुत जन, बट आई विल सजेस्ट यू गाइज नॉट टू ओवर थिंक एंड ड्राउन इन योर सैडनेस एंड वो सब मत करो. ओवर थिंक छोड़ दो लाइफ को उसके हाल में. स्टे ट्रू टू योर सेल्फ. बस खुद के साथ जेन्युइन रहो, ट्रू रहो, एंड गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ. थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन. सो गाइज, नाउ आवर सेवेंथ पॉइंट, विच इज़ अ वेरी जेन्युइन थिंग एंड नेचुरल थिंग. ये सारे तो वही चीज़ें हैं जो आपको पता है, बट आप किसी और से सुनना चाहते हो.
बट ये सब ऐसा नहीं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बोलूँगी, ये सब आपको पता है, बट यू जस्ट वॉन्ट समवन टू टेल यू. सो 7th पॉइंट इज़ कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट पॉजिटिव थिंग्स. मैं ये चारों पॉइंट में यही समझा रही थी. प्लीज़ बी पॉजिटिव. लाइक आई एम अ गर्ल, चाहे चीज़ें जितना भी बुरा हो, आई टेक आउट द पॉजिटिव थिंग्स. इवन मतलब मैं बोल रही हूँ ना, जितना भी नेगेटिव, जितना बड़ा नेगेटिव इशू, बड़ा जो भी हो जाए ना नेगेटिविटी, जितना बड़ा नेगेटिव चीज़ मेरा सामने आ जाए, आई विल टेक आउट द पॉजिटिव थिंग एनी हाउ. मैं हमेशा, चाहे सिचुएशन जितना बुरा हो, आई टेक आउट वन पॉजिटिव थिंग एंड आई ऑलवेज, मतलब मैं खुद को ऐसे समझा देती हूँ ये तो अच्छा होने वाला है, बाकी ये बुरा हो रहा है, सही हो जाएगा. आई एम, मतलब मैं ऐसे बना चुकी हूँ खुद को. आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू गाइज कि पॉजिटिव रहो, क्योंकि नेगेटिव रहने से किसी और का ख़राब नहीं हो रहा है, बस अपना ख़राब कर रहे हो. अगर आप खुद के साथ ख़राब करना चाहते हो, देन यू मेक प्रोसीड विथ योर नेगेटिव थॉट्स. बट इफ़ यू लव योर सेल्फ एंड यू वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ ahead in future, then please stick to positive thoughts, because it's going to surround you with positivity and positive things. So take this seriously. खुद से प्यार करते हो तो नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि it's going to destroy you only. अगर आप खुद का बुरा चाहते हो तो फिर आप नेगेटिव सोचोगे, ओवरथिंक करोगे, सैड रहोगे, एंड आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ कि आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो. जस्ट फाइंड द, जैसे मैं बोली ना, छोटी छोटी चीज़ों से भी खुश रह सकते हैं हम, उससे हम पॉजिटिविटी भी ला सकते हैं. इफ़ यू वांट me to make a video how to remain positive and all, you can comment it down. I will make a video for sure. But अभी के लिए stay positive, because it's going to bring बहुत ही ज़्यादा positivity in your life. So guys, let's go to the 8th reminder, which is कि smile is contagious. This is a way where you can spread love and spread positivity, because you know, when you smile and accept things, that makes things better. या फिर अगर प्रॉब्लम भी होता है ना, वो प्रॉब्लम भी हल्का लगता है, बिकॉज यू हैव एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम. नाउ यू विल फोकस ऑन द सोल्यूशन. आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, सोल्यूशन के ऊपर फोकस कर रहे हो. एंड यू नो, जब आप हंसते रहते हो, लाइफ गेट्स वे बेटर. अगर आप सैड रहने वाले इंसान हो, तो आप खुद से एक बार पूछ लो, लास्ट आप हंसे कब थे अच्छे से. तो अगर नहीं हंसे थे, क्यों नहीं हंसे थे? हंसना क्या, अरे यार, जो चीज़ आप फ्री में मिलता है, फ्री में एंजॉय कर सकते हो, आप उन सब को चूज़ ना करके वाई यू गो ऑन द अदर साइड विच इज़ बैड फॉर यू. आप पॉजिटिव रह सकते हो, जेन्युइन रह सकते हो, खुद के साथ सब कुछ सही कर सकते हो, बट यू चूज टू बी सैड एंड मेक थिंग्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. यू जस्ट मेस अराउंड विथ योर लाइफ. वाई? यू आर द ओनली वन हु मेसेज विथ योर ओन लाइफ एंड मेक थिंग्स बैड. क्यों यार, क्यों करते हो ये? यू कैन स्टे हैप्पी. मैं बोलती हूँ ना, आप जितना आप खुश रहोगे, इट विल ब्रिंग यू मोर पॉजिटिविटी. एंड स्माइल इज समथिंग दैट इज प्राइसलेस. एंड हंस के तो जीना सीखो. You will see life is much more than you think. जो बोलते हो ना, ये फालतू जीवन हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बकवास लाइफ है, वो क्यों? आप खुद की गलती को, खुद जो गलती करते हो, उसके लिए आप लाइफ को क्यों ब्लेम करते हो? भगवान को क्यों ब्लेम करते हो? जब आप थिंग्स खुद गलत करते हो, then why are you blaming your life? You don't want your life, you hate your life. क्यों यार? Life is very precious. So your smile is. I'm just telling you genuinely guys, stay happy, smile more often. सुबह उठ के खुद हंस के खुद का तारीफ थोड़ा खुद मिरर के सामने कर लो, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे. You know, when you love yourself, things get even more better, because you know कि आप सबसे पहले आप खुद को रखते हो. You have to stay happy, you have to stay healthy, you have to do many more things in life. You have your career to मतलब कैरियर भी बनाना है, ये आपको पता है. यू नो एवरीथिंग वेरी पर्टिकुलरली. सो यू नो, स्माइल बिकॉज इट मेक्स लाइफ बेटर. एंड स्प्रेड स्माइल, स्प्रेड पॉजिटिविटी, स्प्रेड लव. सो या लेट्स कम टू अ 9th पॉइंट, जो आजकल बहुत कम दिखने के लिए मिल रहा है. बट नहीं, कम नहीं, बहुत ज़्यादा दिखने के लिए मिल रहा है. बट कभी कभी ये 2-3 वीडियो जब इंस्टा में देख लेती हूँ यार, when you get to know that such things are happening in the world you are living or the country you are living,
दैट्स इवन मोर यू नो, और ज़्यादा बुरा लगता है. सो या, अ 9th पॉइंट इज़ कि काइंडनेस इज़ फ्री. बी काइंड एंड जेन्युइन गाइज. थोड़ा काइंड बनो. इन दिस पीरियड, in this pandemic, people are not getting to eat, animals are not getting to eat. Animals को लोग बहुत मारते हैं. Animals को छोड़ो, इंसान को भी मारते हैं. I don't know कैसे कर लेते हैं ये सब वो. I don't know कैसे कर लेते हैं. But when I see these things, I literally मतलब you know I feel helpless कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ. But yeah, क्या मैं कर सकती हूँ कि I can help these guys. मैं ये जो लॉकडाउन हो रखा है अभी, आई एम फीडिंग टू स्ट्रे डॉग्स एवरी डे इन आवर एरिया. इफ़ यू डोंट नो, देन आई हैव ए NGO named Paws Matter, which is for all the animals. And our first motive is कि we won't let any animal die out of hunger. So we are feeding some animals in our area, in our locality, and we have a team, those who are feeding the local animals in their locality. So what we can do now is we can at least feed them because they are not getting anything to eat, and we can donate when अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे डोनेशंस बहुत चाहिए. we can donate and help them. just be kind. इतना मतलब stick be ground to earth. तो मतलब इतना बुरा मत बनो. अच्छा काम करो. अच्छा लगता है जब आप अच्छा काम करते हो. कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी इस बारे में, क्योंकि आपको पता है आप कुछ ज़्यादा बोलोगी तो बोलोगे भाषण मार रही है. तो आप बोलो भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है. बट या, प्लीज़ बी काइंड एंड हेल्प अदर्स. क्योंकि व्हेन यू हेल्प अदर, आपको खुद को अच्छा लगता है कि हाँ, आई एम हेल्पिंग अ पर्सन. फॉर एटलीस्ट इट कैन ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस. You are helping them and they are giving you blessings and all, you know, अच्छा लगता है. So guys, here comes our last point, which is the 10th point, which is कि you fail if you quit. You only fail if you quit actually. जब आप fail होते हो ना, वो हारना नहीं होता है. You are you know learning from your mistakes. बट आप जब सोचते हो कि नहीं, आई कांट डू, व्हेन यू आर गिविंग अप, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली फेल. तो अगर आप कुछ करते हो ज़िंदगी में एंड इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, एंड आप और ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो कि मैं ये चीज़ इतने टाइम से या फिर ये कर रही हूँ एंड इट्स नॉट ब्रिंगिंग, मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, एंड यू डिसाइडेड टू स्टॉप इट, दैट्स व्हेन यू एक्चुअली फेल. सो आई विल टेल यू गाइज, डोंट क्विट प्लीज़. अगर आप इस चीज़ से प्यार करते हो एंड यू वॉन्ट दैट इन फ्यूचर, देन प्लीज़ डोंट क्विट, बिकॉज व्हेन यू क्विट यू एक्चुअली फेल. तो नेवर गिव अप एक्चुअली. अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो ना, जस्ट हार्ड वर्क पेज ऑफ गाइज. सो गिव योर एफर्ट. एक ना एक दिन ज़रूर आपको आपके सारे जो स्ट्रगल वो सब करते हो, इट विल शो इट्स कलर. सो have patience, have confidence in yourself, don't quit and don't fail. Thank you so much guys for watching this video. अगर आप यहाँ तक आ चुके हो then thank you so much. If you like the video and you think कि हाँ, इस लड़की की बात तो मैं कुछ मतलब she is making some sense, then do share with your friends and family and don't forget to subscribe to my channel. Bye.